اور ایسے لگتا ہے کہ یو ایس ایک طرف تھریٹ کر رہا ہے، دوسری طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے کہ 20 سال کی یورینیم افزردگی نہ کرنے کا اگر ایران پرومس کرتا ہے تو بات چیت ہو سکتی ہے کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں رہا ہے۔ مذاکرات پر دستخط صرف اس وقت کیے جائیں گے جب ان کی گارنٹی لینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ ایران افزردہ یورینیم کے حق پر نہ بات چیت کرے گا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کرے گا۔ میں ہوں صوفیہ صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں توارے پاکستان۔ آپ نے ہماری ویڈیو کے اہم پوائنٹس دیکھے، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران افزردہ ہوئی ہوئی یورینیم کے اوپر نہ بات چیت کرے گا اور نہ ہی کسی سے سمجھوتا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر جو پاکستانی اور پاکستانی لوگوں کو کے اوپر بہت امپیکٹ رکھ رہی ہے، مارکو روبیو جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ آپریشن فریڈم جس کا آغاز یو ایس نے کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد آبنائے ہرمز کو خالی کروانا تھا ان جہازوں کے قبضے سے جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز بندش کا شکار ہے، یہ آپریشن صرف اور صرف پاکستان کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ پاکستانیوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کا نام ایک دفعہ پھر سے عالمی دنیا پر راج کر رہا ہے۔ ادھر ایران نے بھی پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ثالثی کردار کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر غیر اعلانیہ دورے پر پہنچے ہیں ایران، جہاں ان کی ملاقات ایران کے اسپیکر قالیباف سے ہوئی ہے، جو کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں اسلام آباد میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقات ایران کے انٹیریئر منسٹر سے بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس ملاقات کے بعد سے لے کر اب تک جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے کچھ نئے پوائنٹس ہیں جو امریکہ کو دیے گئے ہیں۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ چائنا کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے واضح طور پہ منع کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے دیے جانے والے جتنے بھی پوائنٹس تھے ان کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے ان 20 پوائنٹس کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ ایک طرف انہوں نے کہا تھا کہ 20 سال کی یورینیم افزردگی نہ کرنے کا اگر ایران پرومس کرتا ہے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ غالباً یہی وہ بات تھی جس نے ایک دفعہ پھر سے مذاکرات میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو نمایاں کرنا شروع کیا ہے، اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر امریکہ کی جانب سے جو نئے نکات دیے گئے تھے وہ لے کر ہمارے ذرائع کے مطابق ایران پہنچے تھے، اور ایران میں انہوں نے ایران کی جانب سے لیے گئے پوائنٹس امریکہ تک پہنچائے ہیں۔ یہ پوائنٹس امریکہ تک پہنچ چکے ہیں، نئے سرے سے بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کوئی نہ کوئی رنگ لے آئیں گے، یا ہم مذاکرات تک بھی ابھی بھی نہیں جا پائیں گے؟ بہت ساری سچویشن خطے میں ایسی ہے جو بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، بہت اہم محرکات ہیں۔ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یو ایس کے تھریٹننگ دعووں کے اوپر بات چیت نہیں کر سکتا، اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور ایسے لگتا ہے کہ یو ایس ایک طرف تھریٹ کر رہا ہے، دوسری طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ ادھر ایران کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہ ہے روس کے حوالے سے۔ روس یہ کہہ رہا ہے جس طرح پوری دنیا کے ممالک کو افزردہ ہوئی ہوئی یورینیم کا مثبت استعمال کے حق حاصل ہے، یہ حق ایران کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ایران پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزردگی کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ وہ روس کی ایک اہم خبر رساں ایجنسی سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ گفتگو پیر کو شام کو ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھرو ڈیفرنٹ نیوز ایجنسیز آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کسی بھی دوسرے فریق کی طرف
ईरान को पुरअमन तवानाई के मकासद के लिए यूरेनियम अफसरदगी का मुकम्मल हक हासिल है। क्योंकि ये जुमला ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास पहुंचा है, तो शायद उर्दू समझने वालों के लिए बेहतर अंदाज में ये इस जुमले को कंपाइल नहीं कर पा रहा। कहा यह जा रहा है कि ये बुनियादी असूल है जो कि सारी दुनिया पर लागू होता है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे फरीक को थ्रेटन करने के लिए अगर यूरेनियम अफसरदा नहीं कर रहा है तो उसे यूरेनियम अफसरदगी का मुकम्मल हक हासिल है। ये तो हम सबको मालूम है कि यूरेनियम की अफसरदगी ईरान और अमेरिका के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के बहुत अहम शराइत और नुकात में से एक नुक्ता है। इस्माइल बकाई के दो बयानात इस वक्त मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल की हेडलाइन है। पहला बयान ये है कि ईरान अफसरदा यूरेनियम के हक पर ना बातचीत करेगा और ना ही कोई समझौता करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ये बात कही है और वो हफ्तावार अपनी जो ब्रीफिंग है उसमें उन्होंने ये बात कही है। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा है कि ये बात कतई है, यानी कि हतमी तौर पर ये बात कही जा रही है कि ईरान यूरेनियम की अफसरदगी और ऐसे किसी मौजू पर बात करने के हवाले से या इस पर समझौता करने के हवाले से कोई बातचीत नहीं करेगा। तो ये दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि ईरान अपनी यूरेनियम अफसरदगी को किसी पॉइंट का हिस्सा रखता है। इस्माइल बकाई ने ईरान और अमेरिका की जानिब से होने वाले मुज़ाकरात का हवाला देते हुए जब एक सहाफ़ी ने ये पूछा कि अब क्या किया जाएगा, तो उनका कहना था कि ईरान के मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं और ईरान अपने तमाम पॉइंट्स वक्तन फ़वक्तन पूरी दुनिया के सामने रखता रहा है। हमने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि ईरान के कुछ चीदा पॉइंट्स हैं। यूरेनियम अफसरदगी, उनके बैरून मुल्क मौजूद जो बैंक में असासे हैं उनका खुलना, अबनाए हुर्मुज़ का खुलना और उनकी तजारत जो कि पूरी दुनिया पर इफ़ेक्ट कर रही है। अब तो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन इससे कबल उसके ऊपर बहुत सी ऐसी पाबंदियाँ आयद हैं जिसका ख़ात्मा ईरान का बुनियादी हक और ईरान की जानिब से दिए जाने वाला बहुत अहम नुक्ता है। इस्माइल बकाई ने एक और जुमला कहा है जिसमें कहा है कि अमेरिका काबिले एतमाद नहीं रहा है। इससे कबल ईरान ये भी कह चुका है कि मुज़ाकरात तो हो जाएंगे, लेकिन मुज़ाकरात पर दस्तखत सिर्फ उस वक्त किए जाएंगे जब इनकी गारंटी लेने के लिए कोई ना कोई मौजूद होगा। अब बात करते हैं इस्माइल बकाई के उस दूसरे जुमले के बारे में जिससे मैंने कहा था कि एक बहुत अहम सिचुएशन डेवलप हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान अब भी सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से नए जो नुकात हैं वो अमेरिका को भेजे गए हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इनके ऊपर अमेरिका संजीदगी से बातचीत करने के लिए तैयार होगा। इस्माइल बकाई ने यह भी बताया है कि हफ्ते के दिन अमरीकी फरीक ने 14 नुकाती जो मंसूबा है उसको मुस्तरद किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सालिसी किरदार के ज़रिए उनके पास नए पॉइंट्स पहुँचे हैं और अब उनके ऊपर बातचीत करने के लिए ईरान ने कुछ नए नुकात और तजावीज़ दी हैं जो कि अब अमेरिका के पास पहुंच चुकी हैं। और ये इस हवाले से आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अहम दौरा किया है। उस दौरे के साथ इस सालिसी के किरदार के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही वाज़ेह और नुमाया नज़र आते हैं। उधर तर्जुमान पासदाराने इनकलाब ये कह रहे हैं कि जंग में होने वाली ज़िल्लत का अज़ाला करने के लिए किसी भी अहमकाना इक़दाम को दोहराने का नतीजा मज़ीद सख्त और फ़ैसला कुन होगा। ये वो ख़बर है जो पूरी दुनिया को हिलाने और दहलाने के लिए काफ़ी है। जहां अमेरिका की जानिब से ईरान के हवाले से मुसलसल मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, वहीं ये बयान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान फाइनली कोई ऐसी राय अडॉप्ट कर चुका है, कोई ऐसा फ़ैसला कर चुका है
जो अमेरिका जैसे बड़ी रियासत को थ्रेट कर रहा है। जनरल शिकार जी, जो कि पासदाराने इनकलाब के एक अहम रुकन और तर्जुमान समझे जाते हैं, उन्होंने फॉरेस्ट न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया की जो ख़बरें हैं, मीडिया है, उसमें एक हलचल दिखाई दे रही है। वहीं जब हम पाकिस्तान के सालसी किरदार की बात कर रहे थे तो मार्को रूबियो ने भी इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो पाकिस्तान के ही कहने पर रोका गया है। इसके अलावा सऊदी अरब की हुकूमत ये कह रही है कि इराक़ की जानिब से दागे जाने वाले मिज़ाइल को कामयाबी से निशाना बनाया गया है और उनको रोक दिया गया है उनके अहदाफ तक पहुंचने से। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान है जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमारी नज़र से गुज़रा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ख़बरदार किया है और कहा है कि जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात में जो ताअत्तुल का शिकार हुए हैं, इस पर वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ट्रुथ सोशल पर की जाने वाली एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ईरान को जल्द फ़ैसला कर लेना चाहिए वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये बयान जिस वक्त में सामने आ रहा है, आपको और मुझे इसका बहुत बेहतर तरीके से इदराक है, जैसे हम पिछली वीडियो में भी कह रहे थे। और ईरान बार बार ये कह रहा है अमेरिका जो कर रहा है मुज़ाकरात के साथ साथ वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, या वो धमकी दे या वो मुज़ाकरात करे। मुत्तहदा अरब अमारात के जौहरी बिजली घर के ऊपर ईरान की जानिब से हमला किया गया है और इस हमले के हवाले से जो कन्फर्मेशन रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सारी मीडिया पर मौजूद है। इस हमले की जो कि जौहरी प्लांट पर किया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि भारत ने, जर्मनी ने और दुनिया के कई बड़े ममालिक इंक्लूडिंग IAEA जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर बराका के करीब मौजूद बिजली घर जो कि न्यूक्लियर तवानाई से चलता है, उसके करीब एक ड्रोन हमला हुआ है जिसकी मज़म्मत पूरी दुनिया में जो हुकाम है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से बहुत अहम बयान दिया है और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि किसी भी जौहरी तनसीब को जानबूझकर निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी एटमी एजेंसी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जौहरी तनसीबात पर हमले के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है कि कोई भी किसी भी सूरत में इनको निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसे अमलाक ना सिर्फ इंसानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं बल्कि आसपास मौजूद जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान के बयान में ये भी कहा गया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निज़ाम है वो पूरी दुनिया में वाज़े और क्लियर है, तस्लीम शुदा है, इसकी पासदारी दुनिया के हर मुल्क को करनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के हरीफ मुल्क भारत ने अपना बयान दिया है और भारत ने कहा है कि बराका के जौहरी बिजली घर को निशाना बनाने पर उनको शदीद तशवीश है। इस किस्म के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं और ख़तरनाक हद तक कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। आपको बताते चलें कि मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके बराका में ईरान की जानिब से एक हमला किया गया था। उस हमले में जो बिजली घर है जो कि एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली घर है, इसके करीब मौजूद जनरेटर को आग लग गई थी और इस खबर ने पूरी दुनिया में एक बड़ी हेडलाइन की शक्ल अख्तियार की थी, इसलिए क्योंकि इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। खुदा ना करे अगर किसी भी जौहरी प्लांट को या एटमी घर को नुकसान पहुंचता है तो इसके करीब रिहायशी जो लोग हैं वो जहरीली गैस की वजह से अपनी ज़िंदगियों से महरूम भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की ख़बर है जो गुज़िश्ता 24 घंटों में हमारे सामने आई है। लेट्स सी कि आइंदा आने वाले 24 घंटे क्या कहते हैं। अभी तक ऐसे लग रहा है कि ना ही मुज़ाकरात के लिए कोई राह हमवार हुई है, नए पॉइंट्स दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी में एक दफ़ा फिर से पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन
اب ایک دفعہ پھر ایران جارحانہ موڈ میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل ایران نے اپنے موڈ کو ٹون ڈاؤن کر لیا تھا۔ وہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، سیز فائر کی مدت ختم ہو رہی ہے، اگر مذاکرات نہ کیے گئے تو بہت خطرناک قسم کے نتائج آ سکتے ہیں۔ آپ نے ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھی، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مصدقہ معلومات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم پر ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم آپ تک مصدقہ اتھینٹک انفارمیشن لے کر آئیں، اور ہم ان تمام خبروں کا نچوڑ چند منٹس کی ایک ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک توار پاکستان کو لائک نہیں کیا تو ہمارے پیجز موجود ہیں توار پاکستان کے نام سے، یوٹیوب پر ہم موجود ہیں توار پاکستان نیوز اور توار پاکستان، اور ٹی پی ٹاکس کے نام سے۔ ٹی پی ٹاکس میں ہم نوجوانوں کے حوالے سے خصوصی ایپیسوڈز کرتے ہیں جس میں ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے ویورز ہیں تو ہمارے ان چینلز کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مصدقہ اتھینٹک انفارمیشنز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔